Good morning, students. Today's topic is pollen grain, structure of pollen grains, and commercial use of pollen grains. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, स्ट्रक्चर एंड स्टेमन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगी माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम इट मीन्स मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। नाउ हम लोगों ने स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया का जब स्टडी किया था तो हम लोगों ने देखा था कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। ओके, 4 लेयर्स में आउटर कवरिंग ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर दैट इज़ कॉल्ड एंडोथीशियम, third layer that is called middle layers, and the innermost layer is called tapetum. The outer 3 walls layer perform the function of protection. Okay, so that is called protective layer also. But innermost layer, which is very important, called tapetum, which provide nourishment to the pollen grains. ओके, इसे नर्स लेयर के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ये क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स को जब तक ये प्रोटेक्ट कर रही है माइक्रोस्पोरेंजिया में, उन्हें नरिश करती है और उन्हें हेल्प करती है डेवलप्ड होने में। ओके, आफ्टर dehiscence the anther rupture the wall and releases the several thousand of pollen grains at a time. Next we will start male gametophyte. Male gametophyte it means pollen grain. Okay, now we will see structure of pollen grain. A pollen grain is a partially germinated microspore representing the male gametophyte. It is a haploid, uninucleated and minute spore produced in a large number by meiosis in the microspore mother cell. They vary in their size, shape, color, design, etc. from species to species. Pollen grains male gametophytes होते हैं, haploid होते हैं. Haploid it means number of chromosome half होना, so that is called haploid. Uninucleate, uni means सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, इनके साइटोप्लाज्म में. एंड माइन्यूट स्पोर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज नंबर बाय मियोसिस. डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि 11th में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि हैप्लॉइड कब होंगे, जब कोई भी पेरेंट सेल मियोसिस डिवीजन करती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और इस प्रकार का जो डिवीजन है वो क्या कहलाता है, मियोसिस. तो मियोसिस डिवीजन के कारण जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड. नाउ नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल. आपको शेप दिख रहा है पिक्चर में, कैसे दिख रहे हैं ये, स्फेरिकल शेप. measuring about 25-50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ये एक जनरल मतलब एक स्पेसिफिक या ऑथेंटिक मेज़रमेंट्स नहीं होता, ये एक जनरलाइजेशन है कि अप्रॉक्सीमेटली 25 to 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर हो सकता है. ओके, इट हैज़ 2 लेयर्ड वॉल. आउटर हार्ड लेयर दैट इज कॉल्ड एक्साइन एंड inner layer called enzyme. Okay, now first of all हम देखेंगे exine. Exine it means outer wall. This layer made up of sporopollenin. It is the most resistant organic material as it can withstand high temperature as well as strong acid and alkali. इट इज़ मोर टफ. ओके, स्पोरोपोलेनिन क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इन्हें डोमेंसी स्टेज में रख सकते हैं, मतलब ये हाई टेम्परेचर. पॉलन ग्रेन्स हैव प्रोमिनेंट डिस्टल अपर्चर. ओके, पॉलन ग्रेन्स की बॉडी पर एक अपर्चर होता है, एक पोर होता है
for the germination. Okay, this pore is called germ pore, where sporopollenin is completely absent. Okay, इस जर्म पोर्स की अगर हम सरफेस की स्टडी करें तो जर्म पोर वो प्लेस होता है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है. The inner layer intine is thin and chiefly composed of cellulose and pectin. Okay. Now, the cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cells and generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and the large irregular shaped nucleus. The generative cell is a small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. See this picture. In this picture, large area show vegetative cell and has irregular shape of nucleus, and lower part show generative cell. Got it? ये जो पिक्चर से आपको दिख रहा होगा, जनरेटिव पार्ट हमारा स्मॉल है और वेजिटेटिव पार्ट लार्जर है. In some species of angiosperm, generative cells divides mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are shed. In this stage, pollen grains has three-celled stage. Okay? कुछ स्पीशीज़ में जो हमारी पॉलिन ग्रेन्स का जेनरेटिव पार्ट होता है, जिसे हमने स्मॉल पार्ट के रूप में देखा था, वो माइटोटिकली डिवाइड होता है और टू मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. आई होप आपको पॉलिन ग्रेन का और मेल गैमेटोफाइट्स का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है. अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिन ग्रेन्स. Now we know that pollen grains are rich in nutrients. That's why in Western countries, large number of pollen products formed in the form of tablets, in the form of nutrient syrups. These tablets and syrup are used to increase and enhance the performance. Many pharmaceutical industries, herbal products, herbal syrups, cosmetics, बहुत सारी ऐसी एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स भी पॉलिन ग्रेन्स की हेल्प से रेडी कर रही हैं. पॉलिन ग्रेन्स का यूज़ डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. तो डिमांड को देखते हुए फॉरेन कंट्रीज़ और हमारे इंडिया में भी पॉलिन ग्रेन्स को प्रिजर्व करना शुरू कर दिया गया है. ओके, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलिन ग्रेन्स फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन. ओके, लिक्विड नाइट्रोजन में इन्हें स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है लॉन्ग टाइम, ताकि हम इनका यूज़ कर पाएँ. ओके, तो इनका टेम्परेचर कितना होता है, प्रिजर्वेटिव जब हम यूज़ करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उन्हें प्रिजर्व किया जाता है. तो इनका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, और इनको बैंक्स में कलेक्ट किया जाता है. आप लोगों ने नॉर्मली बैंक सुनी है जहाँ पर आप मनी डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं. सिमिलरली हम लोगों ने जेनेटिक जो जीन बैंक्स हैं उनकी भी स्टडी 11th 9th 10th में की है. लेकिन ये जो है पॉलिन बैंक हम केवल 12th में पढ़ रहे हैं कि पॉलिन बैंक भी आजकल बनने लगी हैं फॉर द प्रिजर्वेशन.